Hello everyone, we will continue our discussion on love in the time of cholera. Welcome to our channel, our book Nook 25. So in the previous episode, I have introduced you all to the three protagonists of this book. And we came till that part of the book where Florentino Ariza, one of the protagonists, meets Fermina Daza's father. Fermina is also one of the protagonists. तो जैसे एक पिताजी अपने बेटी के लवर से मिलते हैं तो ऑब्वियसली उनका स्टेटमेंट तो यही होने वाला है कि मेरी बेटी को भूल जाओ, राइट? एंड दैट वाज द सेम स्टेटमेंट used by Fermina Daza's father. And as usual, the guy denies it कि नहीं, मैं नहीं भूल सकता. Well, what I found quite amazing is that Florentino Ariza, when he was asked by Fermina's father to get out of their way, Florentino's answer was she was the one who will decide with whom she want to spend her life. On this, Fermina's father's reply was कि ये तो आदमियों का काम होता है. And to this, Florentino's reply was, may it be. I cannot answer without knowing what she thinks. It would be betrayal. धोखा होगा ये तो. सच मतलब उस ज़माने में भी उसके इतने फॉरवर्ड थॉट्स थे कि उसने एक लड़की का ओपिनियन रखना या लड़की का ओपिनियन जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा रादर देन द मैसेज फ्रॉम हर फादर. वेल, अब जैसे लड़के ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं भूलने वाला उसे, मैं नहीं निकलने वाला हूँ तुम दोनों की ज़िंदगी से. सो द टिपिकल थिंग वॉट एवर अ फादर डज इज़ सब बोरिया बिस्तर उठा के फर्मीना को उस शहर से दूसरे शहर लेके जाने लगे. तो जैसे ट्रैवल की बात हो रही है किताब में, तो हमने कई जगह पे ऐसा देखा. इफ़ यू गाइज हैव ऑलरेडी रेड द बुक, you will know that there is some kind of war का mention in the book. So what Gabriel is talking about the war in this book is that of he's talking about civil war in Colombia, which was between the liberals and conservatives during the late 19th and early 20th century. मुझे और एक पार्ट याद रह गया जो चिल्ड्रन और पेरेंट्स से रिलेटेड है. आई विल जस्ट रीड इट आउट. Children often repeat the same things their parents did in their childhood. Yet, what parents once wanted their parents to understand and accept, they often refuse to accept when it comes to their own children. पेरेंट्स का तो हमेशा यही डायलॉग होता है, जब तुम पेरेंट्स बनोगे, जब तुम माँ बनोगे, जब तुम डैड बनोगे, तब तुम्हें पता चलेगा. दिस रिवॉल्व समथिंग अराउंड दैट. और इससे रिलेटेड भी स्टोरी में थोड़ा पार्ट है फॉर विच यू गाइज हैव टू रीड द नॉवेल ऑब्वियसली. फिर कहानी में आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ट्विस्ट ऑफ द बुक. Obviously, I'm not going to reveal the twist over here. For that, you guys have to read the book Love in the Time of Cholera by Gabriel. So, twist ऐसा है कि ये twist मैंने रात को अराउंड 10:30 के आसपास मैं पढ़ रही थी and I got to know of this twist. और वो पढ़ते ही मुझे ऐसा हो गया कि oh God, I want to discuss it with someone. So, I messaged one of my friend जिसने ये किताब पढ़ी हुई है. Obviously उसका मैसेज, उसका रिप्लाई सुबह आया and she told me that its resemblance is to one of the Bollywood movie and I won't tell which Bollywood movie. If you guys have read the book, those who have read the book, they will let me know in the comment section what Bollywood movie I am talking about. Obviously I'll be giving hint to you guys that it's a movie in which female actor is Sonam Kapoor and a South Indian male actor and one more Bollywood male actor. Okay? फिर मुझे लगा हाँ, yeah, there is some resemblance to this movie and the story, kind of. पूरा तो नहीं but yeah, काफ़ी. अब जैसे मैं सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है या काफ़ी शहर से बाहर लेके जाना, पिताजी लेके जाते हैं एंड या तो स्टोरी तो काफ़ी फ्लो में चल रही है. जैसे
प्रोटैगोनिस्ट का 1 बाय 1 का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, देन सपोर्टिंग एक्टर्स का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, फिर सम लव स्टोरी चल रही है बीच में, फिर सम पार्ट ऑफ सिविल वॉर. स्टार्ट में ना मुझे थोड़ा सा वेग लगा था. ऑब्वियसली द इंग्लिश इन दिस बुक इज़ क्वाइट ऑफ हाई लेवल. आई हैड टू कीप my phone always nearby to look for meaning of the words, but ठीक ठाक grasp आ रहा था. But how the overall book I felt, I will let you know at the end of the discussion of these episodes. So डॉक्टर अरबिनो ऑब्वियसली मेडिकल स्कूल का, और उनके मतलब उन्होंने उनके मेडिकल नॉलेज का कैसे रेबेलियसली, बहुत रेबेलियस बन के अप्लाई किया इनटू हिज डेली प्रैक्टिस, वो काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है. जैसे डॉक्टर अरबिनो पास्ट और गॉट हिज डिग्री विथ वेरी फ्लाइंग कलर्स एंड अ वेरी नॉलेजेबल डॉक्टर. ही हैड द एम ऑफ अ क्लोज्ड सीवेज सिस्टम बनाने का, सो दैट यू नो कॉलेरा एपिडेमिक काफ़ी कंट्रोल में आ जाए. So he had a word with council. I mean, literally forced word is used. He forced, literally the term force is used. City council that poor should build their own latrines rather than defecating in the open, because the dust soiled with it is inhaled by everyone. अब कॉलेरा रोकना है ना उसे, so we have to take measures, and that too काफ़ी rebellious बन के measures लेने पड़ेंगे. So, being from a medical background, I have read about symptoms of cholera and all that, but obviously it is not that deadly as it was back then. Around late 19th century, early 20th century की बात कर रहे हैं, around 1800s वगैरह, around 1800s के बारे में बात कर रहे हैं. सो दैट टाइम कॉलेरा वॉज अ रियली डेडली डिजीज, एंड आई फील गैब्रियल हैज़ डन टोटल जस्टिस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेडलीनेस ऑफ द डिजीज कॉलेरा. मतलब लिटरली वाइल रीडिंग आई हैड गूज बम्स व्हेन आई वाज रीडिंग, इवन दो आई एम अवेयर कि व्हाट कॉलेरा इज, व्हाट कॉलेरा कैन डू, बट स्टिल द डिस्क्रिप्शन हैज़ गिवन मी गूज बम्स. I don't know today's Gen Z or Gen Alpha generation could grasp this, because it's a love story which progresses in the form of love letters. The love letters were handwritten in the beginning. Later, as the story progresses, the letters were written by a typewriter. So I come from a millennial generation when there were no phones, जहाँ पे WhatsApp messages नहीं होते थे. If you want to convey your message or love things, एक WhatsApp करो and सामने वाले को तुरंत instant पता चल जाता है. This was not that easy, and the struggle was really different, and I have been through the non-phone era, so I can imagine it. सो हम हैंड राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एंड डॉक्टर्स के हैंड राइटिंग उस ज़माने से कहा जा रहा है कि बुरे होते हैं. देयर हैज़ बिन वर्ड यूज्ड बाय गैब्रियल, दैट इज क्रिप्टिक स्क्रॉल. आई गेस आई प्रोनाउंस्ड इट राइटली, क्रिप्टिक स्क्रॉल, टंग ट्विस्टर. इफ़ यू आर ऑल्सो अ मेडिको, यू माइट हैव रेड इन योर बुक्स दैट रिवर्स smoking from the burning end. The burning end is kept in the mouth, which is very high risk factor for oral cancers. And how the origin came of this, I got to know from this book. I mean, today I don't remember that if the reason has been mentioned in the books or not, but I do remember that हमने reverse smoking के बारे में हमारे medical किताब में बात पढ़ा है. So how did it came or how it was invented was, war चल रहा था. अब दुश्मनों से बचने के लिए any kind of light is hazardous. थोड़ा भी glow आ जाए पता चल जाएगा and you will be shot on the spot. So men used to smoke ulta with the burning end of the cigarette in their mouth. This is how it was invented. I mean, I'm really quite surprised that मुझे वो पार्ट तो पता नहीं, तब पता था या नहीं, बट उसका रीज़न मुझे आज एक लव स्टोरी वाले नॉवेल से पता चला.
फिर देयर इज मेंशन अबाउट फोटोग्राफी ऑल्सो, जैसे फरमीना अपने ग्रैंड मदर के फोटोज़ देखती है एंड दैट मेड मी क्यूरियस दैट कि फोटोग्राफी इन्वेंट कब हुआ था, व्हेन डिड द वर्ड इवन केम लाइक फोटोग्राफी. So I did a bit of research and I'll share it with you guys, especially the years. So the photography was invented in 1826 or 1827, while the term photography was coined in 1839, and this novel was written around 1985 or something. अब काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन है ट्रैवलिंग के बारे में, और ट्रैवलिंग जो है वहाँ पे सिर्फ शिप्स में हो रही है. तो यू नो काफ़ी लोगों को मोशन सिकनेस होता है. शिप्स में अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो तो यू नीड मंथ्स टू रीच सम प्लेस, और एटलीस्ट 15 to 20 डेज तो लगते ही है. और फिर वेदर चेंजेस होते हैं, नाइट में अलग में. बट टुडे वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी कैन रीच एट एनी प्लेस. It's a matter of just few hours and you will reach your destination. And I'm really grateful that the struggle is over. Such kind, I think the traveling was तो मेरा तब पैशन तो नहीं होता आई थिंक ट्रैवलिंग के लिए. आई डोंट नो होता नहीं होता whatever, बट पढ़ के तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो नहीं होता जितना आज है. सो मैंने फ्लोरेंटिनो अरीजा के पढ़ने के बारे में भी थोड़ी बात करी है कि उसको काफ़ी शौक था किताबें पढ़ने का, स्पेशली लव स्टोरीज़ एंड लव पोयम्स, स्पैनिश वाले, राइमिंग वाले. इफ़ यू गाइज रिमेंबर दिस ऑल आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. तो वो ना मतलब ये मुझ में भी आदत है कि मूवी देखते टाइम या कुछ पढ़ते टाइम अगर वो कुछ थोड़ा सा भी रिलेटेड हो उस कैरेक्टर्स में, मुझे लिटरली मेरे अराउंड जो लोग होते हैं उनके इमेजेस दिखने लगते हैं. ये आप लोगों के साथ भी हुआ है क्या? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. और फिर स्टोरी आगे चलती रहती है. फरमीना की शादी हो जाती है और फिर उसकी मैरिड लाइफ, उसकी एडजस्टमेंट लाइफ में with her mother-in-law, with her sister-in-law, then kids come in, and side by side the lover Florentino Ariza की भी लाइफ चलती जा रही है with all the one night stands, with situationship, ये सब चलता जा रहा है. वन नाइट स्टैंड और सिचुएशनशिप्स के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन है इसमें किताब में. एंड हाउ ही यूज्ड टू चूज, हाउ ही यूज्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑल्सो. तो मैं इस टॉपिक के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ तब इंटरेस्ट आया, तो डू रीड द बुक. वेल इसमें पीडियाट्रिक इस ब्रांच को लेके भी बात हुई है कि इस पीडियाट्रिक इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट स्पेशलाइजेशन बिकॉज children become sick only when in fact they are sick, whereas in adults after a certain age they have symptoms without disease which is more worse. So अब इसके मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया बात कि पीडियाट्रिक जो है दे ऑनेस्ट जो है पीडियाट्रिक स्पेशलाइजेशन बिकॉज ओके अगर ये बात देखें सेकेंड पॉइंट जो है इन एडल्ट आफ्टर अ सर्टन एज दे हैव सिम्टम्स विदाउट डिजीज विच इज़ मोर वर्स. दिस इज़ ट्रू ओके, but there are psychosomatic disorders even in pediatric age group, like if they are getting bullied in school or if there is some kind of tension in the family, like parents may fights and quarrels and all that, or if there is a traumatic childhood, then the child acts like कि मैं बीमार हूँ ऑन पर्पस. ही डज दैट इफ़ उसको रियलाइज़ होता है कभी कभार चाइल्ड को, अगर वो बीमार गिर गया बहुत और उसके बाद पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, देन ही अगेन प्रिटेंड्स टू बी कि आई एम सिक एंड ऑल दैट. सो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ क्वेश्चनेबल या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट टू से. अब ना कई बार क्या होता है कि किसी पेशेंट को कुछ तकलीफ़ है और कि ए बी सी उसकी दिक्कत है तो मतलब उसका डी डायग्नोसिस है. लेकिन कई बार क्या होता है EFG सिम्टम्स होते हैं लेकिन फिर भी डायग्नोसिस डी ही होता है ना. तो ऐसा सा हुआ है इस
फर्मीना के साथ उसने कई सारे कॉलेरा के डेथ से हुए डेड बॉडीज़ देखे थे ऑन अ ऑन अ ट्रैवल शी वॉज टेकिंग, या जब वो ट्रैवल पे होती है, एंड शी इज़ अगेन लाइक कि ये सच में कॉलेरा के पेशेंट्स है या किसी और की वजह से डेथ हुई है, क्योंकि ये इनकी डेड बॉडीज़ वैसे नहीं लग रही जैसे डिस्क्राइब किया गया है ना। सो इसको लेमैन टर्म्स में बहुत अच्छा बोला गया है, इवन गॉड इम्प्रूव्स हिज मेथड्स। आई रियली लाइक दिस स्टेटमेंट। अब जैसे इस किताब में जो है ना, जो प्रोटैगोनिस्ट की लाइफ है स्टार्टिंग अराउंड एडोलेसेंट टीन एज के अराउंड, एंड इट इज़ बिन कवर्ड टिल देयर ओल्ड एज। अब ओल्ड एज के बारे में भी अगर डिस्क्रिप्शन है, उनकी लाइफ इन देयर ओल्ड एज भी है, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट ओल्ड एज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बैलेंस के, विजन के, बॉल्डनेस के, येस इवन बॉल्डनेस हैज़ बीन मेंशन्ड इन दैट, एंड ये बॉल्डनेस इनसिक्योरिटी तब से लेके आ रही, मतलब तब से एग्जिस्ट करती है। सो इसको कैसे दर्शाया है गैब्रियल ने कि फ्लोरेंटिनो को जो बॉल्डनेस होता है, पेपर में आए हुए हर एडवर्टाइजमेंट को वो ट्राई कर चुका रहता है, कोई भी क्रीम हो, कोई भी ऑयल हो, जो भी हो, टू hide his baldness or to get rid of that baldness. He has tried all sort of advertisements has been mentioned in this. अब इस किताब में डेथ भी है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है ओल्ड एज में, एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू कोप अप फॉर फर्मीना। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन, आई मीन आई रियली लव्ड हाउ स्टेजेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीफ बताया गया है, लाइक all the stages of grief, as I mentioned, like she is furious because he left her alone. She misses him, wants to share things with him, and suddenly she remembers he is no longer there. It's written to such a depth, the effect of death of a spouse on a person. It makes us realize that all things we take for granted, we shouldn't take for granted, and we should be grateful for everything we have today. अब स्टोरी में आगे क्या होता है, डेथ हो गई है, फ्यूनरल पे लवर की एंट्री हो गई है, और फिर कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स, और फर्मीना वापस उसके प्यार को एक्सेप्ट करती है या नहीं, फ्लोरेंटिनो को अपने लाइफ में वापस आने देती है या नहीं। नाउ देयर आर फर्मीना के किड्स ऑल्सो, दो उनका भी रोल बनता है अगर फर्मीना सोचती है कि मैं फ्लोरेंटिनो के साथ वापस कोई रिश्ता बनाऊं या नहीं। ये बहुत सारे पॉइंट्स कवर्ड है इसमें, जिसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। लेकिन बुक जो है ओवरऑल, व्हाट आई फेल्ट अबाउट दिस बुक इज़ दैट आई मीन या इट्स कुछ पार्ट्स में इट्स वेरी ब्यूटिफुली रिटन, कुछ पार्ट्स में इट्स डिफ़िकल्ट टू ग्रास्प, थोड़ी इंग्लिश भी हाई लेवल की है। तो ओवरऑल आई वुड गिव दिस बुक 6.5 to 7 की रेटिंग। वेल यहाँ पे हमारी जर्नी ऑफ सीज़न 2 एंड्स। सीज़न 2 काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। इट्स अ नॉवेल, इट्स अ लव स्टोरी जो 50 years, कितने बोला है यहाँ पे, कितना बोला है, 51 years 9 months and 4 days वहाँ तक चली थी, वहाँ तक वेट किया गया है किसी के प्यार ने अपने प्यार के लिए। सो डू रीड and let me know your reviews about this, how you felt while reading, what would you rate this book. I would definitely love to know more about it from you guys. So I don't know, आपका पर्सपेक्टिव सुन के चाहे मेरा पर्सपेक्टिव भी बदल सकता है इस किताब के बारे में। Well, that's it, and we will meet with a new season, new book. So I am also excited to start our third book of our journey of this book club. So that's it. Yeah.